ठीक है, अब शुरू कर सकते हैं। टू क्लाउड कवर, ये क्या था? मुझे म्यूट कर दिया गया है। नहीं, आवाज आ रही है आपकी सर। अच्छा ठीक। आज कुछ कम लोग हैं, लेकिन हम लोगों ने ये फैसला किया था आपस में बातचीत करके कि हम लोग हफ्ते में एक दिन हिंदी में डायलॉग रखें। इसकी वजह एक थी, एक तो ऐसा महसूस होता था कि शायद कुछ लोग सिर्फ हिंदी बोलना या सुनना पसंद करते हैं, लेकिन मुझे खुशी है कि आज कुछ गैर हिंदी भाषी लोग भी हमारे साथ हैं। और उसका एक एक वजह ये भी थी कि हम ऐसी एक धारणा बैठा रहे हैं और लोगों को ऐसी हम अ, जैसे कि संदेश दे रहे हों कि कृष्णमूर्ति सिर्फ अंग्रेजी बोलने वाले शहर के लोगों के लिए ही हैं। तो मुझे लगता है कि ये धारणा खत्म होनी चाहिए। हर क्षेत्रीय भाषा में, हर रीजनल लैंग्वेज में कृष्णमूर्ति पे बातचीत करने वाले, सुनने वाले लोग होने चाहिए। और हैं भी, मेरे ख्याल से सारी दक्षिण भारतीय भाषाओं में गैदरिंग्स होती हैं। मराठी में होती है, गुजराती में होती है, हिंदी में होती है। तो इससे लगता है कृष्णमूर्ति की जो पहुंच है वो ज़्यादा लोगों तक जाएगी। कृष्ण जी ने एक बार कहा बोलते हैं फर्स्ट लैंग्वेज या सेकंड लैंग्वेज के तरह से, तो वहाँ पर हिंदी में यदि बोल पाते तो ज़्यादा लोग उन्हें समझ पाते। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने सोची थी। संजीव जी ने, फिर जैन साहब ने, और जैन साहब ने अपने ग्रुप के बाकी लोगों के साथ भी बातचीत ज़रूर की होगी। तो ये सोचकर हम लोगों ने फैसला किया कि कोशिश करेंगे कि हफ्ते में या 15 दिन में एक बार हम लोग एक संवाद करेंगे जो सिर्फ हिंदी में होगा। लेकिन अगर वो जो अंग्रेज़ी बोलना चाहें या अंग्रेज़ी में ही समझते हों, तो उनके लिए ऐसी कोई सख्त कोई पाबंदी भी नहीं है कि वो हिंदी बोल ही नहीं सकते, वो अंग्रेज़ी बोल ही नहीं सकते। मेरे ख्याल से ये बात स्पष्ट है। उसके बाद हम लोग हर हफ्ते की तरह वीडियो देखते हैं और आज की थीम पर आगे बातचीत करते हैं। बस शुरू में ये स्पष्ट करना था कि लोगों की तादाद कम या ज़्यादा हो जाए उसकी फिक्र नहीं करनी चाहिए। यदि हमने कोई निर्णय ले लिया सबने मिलके, तो उस पर ही रहा जाए, वो अच्छा है। फिर देखेंगे आगे। ठीक है संजीव, फिर आप एक छोटा सा वीडियो हर बार की तरह दिखा दें, उसके बाद हम लोग फिर कुछ बातचीत करते हैं। सही है? जी धन्यवाद। Why do we go through this struggle to be educated? Is it merely in order to pass some examinations and get a job? Or is it the function of education to prepare us while we're young to understand the whole process of life? Having a job and earning one's livelihood is necessary, but is that all? Surely life is not merely a job, an occupation. Life is something extraordinarily wide and profound. It is a great mystery, a vast realm in which we function as human beings.
If we merely prepare ourselves to earn a livelihood, we shall miss the whole point of life. And to understand life is much more important than merely to prepare for examinations and become very proficient in mathematics, history, and physics. Throughout his lifetime, J. Krishnamurti has been deeply concerned with the problems of education. What is learning? Can parents actively participate in their children's education? What role does the teacher play? Can the very structure of man be radically changed through education? In March of 1978, Krishnamurti joined with a small group of concerned teachers and parents to discuss these vital issues and to discover if they, by working together, could bring about an entirely new dimension in the education of their children. Tremendous problem. It's not just few words. It's an extraordinarily complex problem we are facing. Why should we educate not only ourselves but also the children? What's the point of it? To grow up like ourselves and conforming to a pattern of society, which if one observes very closely is quite immoral. So I wonder why you want to educate your children. If you're not clear, how do you expect a school to give the children clarity? Suppose I have couple of children, what kind of education do I want? And I mean it. Right. Not just I will leave it to them, I want this. I'm passionate that my children shouldn't be destroyed by the rotten education that they have. Right? I want it. I love them. I have a tremendous feeling for them. And I want them to grow up totally differently. So what shall I do? My children go to school. And what do they learn? What is learning? Before I send my children to a school, I've asked Mr. Mark Lee, I said, my friend, what do you mean by learning? Not what is taught, not how you give information, not whether there is attention and so on, all the rest of it. But before I start with that, I want to find out what he means by learning. To learn is memorizing. Learning. No, but you do please go into it. Don't agree, or I'm not agreeing, or saying yes or no. I'm questioning. Is learning merely memorizing, which is what is advocated throughout the world, so that you end up with a skillfully, to earn a livelihood. So your learning is becoming mechanical. You're using machines. Everything is becoming mechanical, right? Your brain, your mind is becoming mechanical. Is that learning? I don't say it's not. I'm just asking you. That's part of learning, right? Right, sir? That's a very small part of learning. Then what is learning then? Just learn very small part? So I'm questioning, please just listen, I'm questioning whether knowledge, as we are taught in the schools, occupying a very small of the brain, which has become mechanical,
learn facts, repeat facts, pass exams, get a job, carry on, improve there, modify, change, but it's same momentum, right? And that occupies very, very, very small part of our brain, our mind. And I say to myself, is that all learning? You teach French, or geometry, whatever it is, mathematics. You are giving me information, aren't you? And you say, learn from this. So he says, all right, sir, I'll memorize. Right? There's a book, and say, look at the book, etc., etc. You are memorizing. And so you are making his mind mechanical. Right? So I say, is that what you're doing, sir? This is what the whole world is doing, right? Nordhaus School, Cambridge, Oxford, Harvard, right? All universities, all colleges, all schools are doing this. Conditioning them in special subjects, right? Or conditioning them through what they call knowledge. You have now cultivated very, very, very small field, very small corner of a vast field. If it has its place, then what is the rest you're doing? You say knowledge has its place, and you say, what is the rest of it? Yes. That is the rest of it. What is the rest of it? Showing what place knowledge has. You have shown me the corner. What is the vast field? It is that seeing which shows what is the place of knowledge. Are you saying, just a minute, because you have shown me and I've understood that that knowledge is a very small corner of the field, that very perception is the whole of this intelligence, which is the vast field. Because I've seen the knowledge as important, and it's a very small part of the field, and the very seeing of it has opened up the rest of the field. Is that it? So we must be very clear when we say that that we understand that knowledge occupies a very small part of this whole vast complex field. The very seeing of it opens up the complexity of the other. Is that what you're saying? Have you seen the complexity of the other? Or the beauty of the other? Or the enormity of the other, the grandeur, the majesty of the other? So I must be very clear on this. So I come back, if I may, if you have the patience. What is learning? Is learning the awareness of the vastness. Right? Awareness. Not learning about. The other is not about something. This requires a great deal of inquiry, meditation, penetration, insight, all the rest of it. Let's leave it for the moment. So, I come to Mr. Mark.
थैंक यू सर जी। मुझे लगता है कि जो शिक्षा का सवाल है वो कृष्ण जी की शिक्षाओं के बिल्कुल केंद्र में था और हमेशा से था उनके साथ। 17 साल की उम्र में भी उन्होंने छोटी सी पुस्तिका लिखी थी जिसमें उन्होंने इसमें अपनी बहुत गहरी रुचि दिखाई थी। कृष्ण जी ने स्कूल्स खोले बावजूद इसके कि वो खुद परंपरागत अर्थ में उन्होंने पढ़ाई नहीं की थी। कॉलेज एजुकेशन तक वो नहीं पहुंच पाए थे, उनका एंट्रेंस ही नहीं हो पाया था कैम्ब्रिज में। कई कारणों से उन्होंने लिखा कि मैंने 3 बार इम्तहान दिए और तीनों बार मैं असफल होने में सफल हुआ। ये उन्हीं के शब्द हैं। और किस तरह से अंधेरा छा जाता था, एग्जामिनेशन हॉल में छा जाता होगा बच्चों के सामने। उन्होंने ये सब खुद भी अनुभव किया था। और उसके बाद जब वो काफ़ी उम्र के बाद अपने ही स्कूलों के, एक विडंबना है कि कृष्णमूर्ति ने ऐसे स्कूल खोले जो कि हिंदुस्तान के सबसे अच्छे स्कूलों में इनको शुमार किया जाता है। कृष्णमूर्ति ने अपने ही स्कूलों के टीचर से पूछा था कि क्या वे एक ऐसे बच्चे को दाखिला देंगे अपने स्कूल में जो कि उस बच्चे जैसा हो, जिसको कुछ ना आता हो, जो कि शून्य में अपना मुंह खोलकर ऐसे ही ताकता हो। जैसे कृष्णमूर्ति खुद थे, बचपन में उनका मुंह खुला रहता था, उनकी चीज़ें याद नहीं रहती थी। उनको एक बार उनके स्कूल के टीचर ने एक कमरे में बंद कर दिया था, उनको छड़ियाँ मारी जाती थी, बंद कर दिया गया था। फिर जब सारा स्कूल बंद हो गया और टीचर को अचानक याद आया कि अरे एक बच्चे को बंद किया गया है, तो वो लोग वापस गए तो देखे कि कृष्णमूर्ति अपने कमरे में वैसे ही बैठे हैं जिस हालत में उनको छोड़ा गया था सुबह या दोपहर। तो उन्होंने अपने ही स्कूल के टीचर से पूछा कि क्या आप ऐसे बच्चे को दाखिला देंगे। नेचुरली सवाल का जवाब नहीं दिया जा सकता है क्योंकि कृष्णमूर्ति स्कूल में आप शायद ऐसे बच्चे को अब एडमिशन नहीं देंगे। तो कृष्णमूर्ति ने बहुत बुनियादी सवाल पूछे। जैसे इस छोटे से वीडियो में ही उन्होंने कहा कि नॉलेज ही जिंदगी का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। सिर्फ नॉलेज पर जोर देना, सिर्फ बुद्धि को विकसित, इंटेलेक्ट के डेवलपमेंट पे जोर देना, स्मृति पे, मेमोरी पे जोर देना, ये शिक्षा का आम तरीका है जिसके आधार पर शिक्षा दी जाती है स्कूलों में, कॉलेजेस में। ये आप चीज़ों को याद कर लें और इम्तहान के दिन उसे पूरी तरह उलट दें अपने आंसर स्क्रिप्ट में। वही आपने बहुत अच्छा कर लिया तो आपको एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट की तरह देखा जाता है। कृष्णमूर्ति इंटेलेक्ट की काबिलियत पे ही सवाल उठाते हैं। इंटेलेक्ट के लिए वो कहते हैं कि एक विराट जीवन के कोना का एक कोना है। ऐसे लोगों को उन्होंने वर्शिपर्स ऑफ द कॉर्नर भी कहा था कि वो एक कोने के पुजारी हैं जो सिर्फ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की बात करते हैं। उसी तरह उन्होंने एक बात कही कि एजुकेशन में जीविका पे ज़्यादा जोर है, जीवन पे कम जोर है। यानी कि सारी ऊर्जा, सारी सोच, सब कुछ इस बात में चला जाता है कि कैसे कोई बच्चा बड़ा होकर एक अच्छी खासी नौकरी पा जाए, उसकी जीविका कैसे अच्छी हो जाए, बाकी जीवन का क्या होगा इसका कोई सवाल का कोई ज़्यादा अहमियत नहीं है। हालांकि स्कूल, सारे के सारे स्कूल्स, चाहे वो कृष्णमूर्ति स्कूल्स हों या फिर मेन स्ट्रीम स्कूल्स हों, उनके ब्रोशर्स में आप देखेंगे कि वो होलिस्टिक एजुकेशन की बात करते हैं। और होलिस्टिक एजुकेशन का मतलब वो ये समझते हैं कि बच्चे कई तरह की एक्टिविटीज़ में चले जाएं। आज संजीव ने बहुत अच्छा एक कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं कि हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा कोडिंग सीख जाए, वो म्यूज़िक सीख जाए, वो खेलकूद सीख जाए, वो अच्छा नाचने लगे, अच्छा गाने लगे। और जो उसकी इरिटेशन है, खीज है, गुस्सा है, उसका जो दुख है, उसका जो डिप्रेशन है, उसका जो
सब्जेक्ट के प्रति कम रुचि है, ये सब तो बाद में ज़िंदगी उसकी ठोकरें खा खा कर वो सीख लेगा। तो वास्तव में ऐसा ही है, हम जिन चीज़ों पे ज़ोर देते हैं वो बहुत ही ज़्यादा सतही हैं। ये तब समझ में आती है जब जब ज़िंदगी की चुनौतियाँ सामने आती हैं और हम खुद महसूस करते हैं कि जो जो शिक्षा हमें मिली है स्कूल और कॉलेजेस में, वो शिक्षा हमें इन चुनौतियों का सामना करने में ज़रा भी मदद नहीं कर रही। तब समझ में आता है पहली बार कि अरे हम लोगों ने तो सीखा ही नहीं। हमारे जीवन की तो सबसे बड़ी समस्या है कि मुझे बहुत गुस्सा आता है और किसी टीचर ने आज तक मुझे बताया ही नहीं कि इसके बारे में कैसे समझा जाए। तो अब इसमें थोड़ी सी अवेयरनेस बढ़ भी रही है। लोग आईक्यू के साथ साथ ईक्यू की भी बात करते हैं, इमोशनल कोशेंट की बात करते हैं। लोग कहते हैं कि नेचर कोशेंट जैसी चीज़ की भी बात करते हैं कि कुदरत के बारे में भी जानना ज़रूरी है। धीरे धीरे ये चीज़ें आ रही हैं। जो कि कृष्ण जी ने, उनकी डेथ को 34 साल हो गए और उसके पहले 60 साल तक करीब करीब उन्होंने यही बातें कही। प्राइमरी एजुकेशन पे जोर दिया। शुरू में उनके दिमाग में एक ख्याल था कि उनको यूनिवर्सिटी खोलनी चाहिए, लेकिन बाद में ये महसूस करना कि ये काम, अब आप इसको ज़रा गौर से देखें तो आप समझेंगे कि ये शिक्षा पर उनका जो सब कुछ, जो उनका जोर था, उसके पीछे उनका मकसद वही था कि एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, एक नया जो वैश्विक व्यवस्था है उसकी स्थापना, और उसको वो शिक्षा से जोड़ते थे। वो ये समझते थे कि शिक्षा एक ऐसा माध्यम है, खास करके बच्चों की शिक्षा, जहाँ से बच्चा बदलता है, व्यक्ति में एक रूपांतरण होता है, व्यक्ति में रूपांतरण से ही समाज में रूपांतरण होता है। क्योंकि वो ऐसा मानते थे कि समाज सिर्फ व्यक्तियों का समूह है और अगर हर व्यक्ति उसमें बदल जाए तो इसकी संभावना है कि स्वाभाविक रूप से वह समाज भी बदलेगा जिसमें वो व्यक्ति रहते हैं। तो उस व्यक्ति का रूपांतरण सही शिक्षा से, राइट एजुकेशन से होता है। इसमें और भी सारे सवाल जुड़ते चले जाते हैं कि अगर हम खुद एजुकेटेड नहीं, अगर मैं एज अ पेरेंट और एज अ टीचर मैं नहीं देख पा रहा हूँ कि एजुकेशन का रियल अर्थ है, जैसा कृष्ण जी कहते थे कि खुद को समझना बिल्कुल भीतर बाहर अच्छी तरह से, और मैं खुद एज अ पेरेंट और एज एन एजुकेटर जोर देता हूँ लाइवलीहुड पे, जीविका पर, या जिंदगी की एक ही चीज़ पर, तो फिर मैं कैसे एजुकेट करूँगा बच्चों को? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। कृष्णमूर्ति जैसी स्कूलों में इस पर प्रयोग किए गए, लेकिन वहाँ भी चुनौतियाँ हैं कि ऐसे टीचर्स कहाँ से आएंगे जो कि इस बात को पूरी गहराई से, पूरे विस्तार से समझ लें और इस तरह से समझें कि वो बच्चों तक भी पहुँचा सकें। फिर अब ये शिक्षा का सवाल पहले से जटिल हो गया। आज से 34 साल पहले जब कृष्ण जी की डेथ हुई, उस समय ये इंटरनेट नाम की चीज़ नहीं थी, मोबाइल्स नहीं थे और कंप्यूटर्स हावी नहीं थे। उन्होंने इशारा किया था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर्स आपकी पूरी ज़िंदगी में छा जाएंगे, लेकिन वैसा उस समय नहीं हुआ था जैसा 2000 के बाद हुआ। आज का जो मिलेनियल चाइल्ड है वो बिल्कुल अलग ढंग से, वो उसकी ज़्यादातर एजुकेशन इन्हीं तरीक़ों से हो रही है। उसका एक्सपोज़र है, वो इंटरनेट पे हर चीज़, उसके लिए गूगल गुरु ही आखिरी गुरु है ज़िंदगी का। हर चीज़ उसे वहीं पे मिलती है। पेरेंट्स का इन्फ्लुएंस कम हुआ है, टीचर्स का कम हुआ है। जो टीचर्स दे रहे हैं क्लास में, वही सब्जेक्ट उसी चैप्टर पे एक टीचर शेक्सपियर की किंग लेयर पढ़ा रहा है, तो वो बच्चा उसी प्ले पर दूसरे सोर्सेज से उससे बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकता है। तो अगर शिक्षा सिर्फ इन्फॉर्मेशन का विनिमय है, सूचनाओं का है, तो आज टीचर के सामने भी बहुत सारी चुनौतियां हैं, क्योंकि उसके साथ कई और सोर्सेज लगे हुए हैं जहां से बच्चे को एजुकेशन मिल सकती है और मिलती है। और ख़ास करके कोरोना पीरियड में तो टीचर्स के लिए एक बिल्कुल नई चैलेंजेस आ गई, क्योंकि जिन चीज़ों से वो बच्चों को दूर रहने के लिए कहता था,
कि मोबाइल मत छुओ, कंप्यूटर पे मत रहो, वही आज एजुकेशन का रास्ता बन गई। तो जिस तरह के चेंज की बात करते थे कृष्णमूर्ति, वो कहते थे कि क्या ये संभव है कि जिस दिन बच्चा स्कूल में अपना पहला कदम रखे, क्या उसी दिन वो क्या भय से मुक्त हो सकता है? तो इस सवाल का भी कोई जवाब शायद कोई शिक्षक, चाहे वो कृष्णमूर्ति स्कूल से जुड़ा हो, चाहे वो कहीं से, इसका सवाल का जवाब देना मुश्किल है, क्योंकि एज अ टीचर मैं खुद भय से मुक्त नहीं हूँ। तो जहाँ पर आप एक ऐसे स्कूल को चलाते हैं जो किसी न किसी सरकारी बोर्ड से भी जुड़ा हो, साथ साथ उसकी ये भी चुनौती हो कि हर बच्चा बोधि को प्राप्त हो, बुद्धत्व को प्राप्त हो, बुद्ध बन जाए, बोधि मिल जाए, उसके दुख का अंत हो जाए, वो भय से बाहर आ जाए, उसके जीवन में प्रेम आ जाए। तो ये चुनौती साथ साथ दोनों को पूरा करना, ये अपने आप में बहुत बड़े सवाल थे जो कृष्ण जी ने छोड़ दिए हम लोगों के लिए, उनके लिए जो स्कूलों में, कॉलेजेस में पढ़ाते हैं। उन्होंने स्कूल में लगातार चिट्ठियां लिखी, टीचर से बात किया। इंडिया में उन्होंने जो यूनिवर्सिटी लेवल पे भी की एक बुक है, वाई आर वी बीइंग एजुकेटेड, उसमें उन्होंने यूनिवर्सिटीज़ में बात की, लोगों से आईआईटी में बात किया, वो भी उसमें है। लेकिन उनकी पहली फिक्र उनकी प्राइमरी एजुकेशन से थी, जहाँ पर वो ये कहीं न कहीं वो इंश्योर करना चाहते थे कि बच्चे की कंडीशनिंग ना हो पाए किसी खास धर्म में, किसी खास तरह की नेशनैलिटी में, किसी खास तरह के इज़्म में। और जिस आज़ादी का को अपने मकसद की तरह से बनाया था उन्होंने 1929 में कि इंसान को सारे पिंजरों से आज़ाद कर देना, टू फ्री मैन फ्रॉम ऑल हिज केजेस, यही करीब करीब गोल उन्होंने अपने स्कूल्स और टीचर्स के लिए भी बनाया था। और ये एजुकेशन सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, उन एडल्ट्स के लिए भी है जो कि बच्चों के साथ रहते और पढ़ाते हैं उनको। ये कुछ विचार संजीव मेरे मन में आ रहे हैं जब मैंने अभी कृष्ण जी का वीडियो देखा। मैं चाहूँगा कि आप थोड़ी देर इस पर बोलें और उसके बाद हम बाकी लोगों को इनवाइट करें। हमारे साथ कुछ ऐसे लोग हैं संजीव जो एक्चुअली अभी पढ़ाते हैं, जैसे श्रीदेवी जी हैं, सुदेशना जी हैं, जोयिता जी हैं, ये स्कूल्स और कॉलेजेस में पढ़ाते हैं। डॉक्टर नायक हैं जो कि सीनियर लेवल पे मेडिकल प्रोफेशन में स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। तो सविता जी भी मेरे ख्याल से एजुकेशन में हैं। तो हम सारे लोग इस पे ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, लेकिन बाकी लोग भी जो हैं उनका इंटरेस्ट है कि एजुकेशन जिसके बारे में कृष्ण जी ने कहा, एजुकेशन जो आज हम दे रहे हैं या रिसीव कर रहे हैं, उसके बीच की खाई कितनी बड़ी है, क्या कोई उम्मीद है कि वो खाई भर पाएंगे, क्या ऐसा कोई संकल्प है, ऐसी कोई तकनीक है, या ऐसा कोई तरीका है, या फिर कृष्ण जी की बातें जैसा कि सुशील जी ने शुरू में कहा कि धर्म एक असंभावनाओं का इलाका है। ये इम्पॉसिबल सवाल पूछता है कि क्या कृष्ण जी ने असंभव प्रश्न पूछे जिनका कोई उत्तर है ही नहीं, कि क्या कोई बच्चा भय से मुक्त हो सकता है स्कूल में जिस दिन वो पहला कदम रखे। आप कुछ अगर रोशनी डालिए। जी धन्यवाद, आपने बहुत दिलचस्प और बहुत ही अच्छी बातें बताई। मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहूँगा इन्हीं बातों को, कि जब कृष्णमूर्ति शिक्षा शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो वो उसको बहुत ही विस्तृत रूप में इस्तेमाल कर रहे होते हैं। उनका तात्पर्य बिल्कुल भी ये नहीं होता कि सिर्फ वो छोटे बच्चों और स्कूल में दे जाने वाली शिक्षा की बात कर रहे हैं।
उनका एक बिल्कुल स्पष्ट कथन है कि शिक्षा एक ऐसी चीज है जो जन्म के साथ शुरू होती है और जीवन पर्यंत चलती है, यानी हमारी आखिरी सांस तक चलती है। तो जब इस अर्थ में हम शिक्षा को देखते हैं तो ये सारा बच्चों को हम क्या सिखा रहे हैं, स्कूलों में क्या हो रहा है, ये हमारे लिए सब बात की बात हो जाती है। सबसे पहला हमारे सामने चुनौती यही हो जाती है कि हम अपनी शिक्षा के लिए क्या कर रहे हैं। और जब हम अपनी शिक्षा की और खुद की शिक्षा की बात करते हैं तो फिर हमको उसमें बिल्कुल ही नए आयाम से और गहराई से उसको देखना पड़ेगा कि हमारे लिए शिक्षा का मतलब क्या है। जब हम अपनी शिक्षा की बात करते हैं तो हम कहना क्या चाह रहे हैं वास्तव में। अगर हम जीवन को देखें तो जैसे ही हम पैदा होते हैं वो हमें सिखाना शुरू कर देता है। हमारे अंदर एक नैसर्गिक, एक नेचुरल उत्सुकता है, क्यूरियोसिटी है, और हम उसी के कारण लगातार सीखते जाते हैं। और बहुत सारी चीजें जीवन हमको सिखाता है। फिर बाकी बहुत चीजें हैं वो हमारे जो आसपास लोग हैं, वो हमारे माता पिता हैं, समाज है, और जिनके साथ भी हमारा इंटरेक्शन होता है वो हमें सिखाते हैं। तो एक सीखने की प्रक्रिया निरंतर चल ही रही है जिस पर शायद हमारा कोई नियंत्रण नहीं है और वो चलती रहती है। लेकिन जब इसमें हम कृष्णमूर्ति के इस प्रश्न को देखते हैं तो फिर हमारे सामने एक अलग चुनौती आती है, क्या हम भी इसमें कुछ कर सकते हैं अपनी शिक्षा के लिए, या चीजें जो हो रही हैं बस वही हैं। तो जब हम अपने लिए, अपनी शिक्षा के लिए कुछ करने की बात करते हैं तो हमको ये देखना पड़ेगा कि उसमें क्या क्या बाधाएं हैं जो हमको सीखने से रोकती हैं, जो हमारी शिक्षा को बाधित करती हैं, उसको रोकती हैं। तो सबसे पहली चीज जो हमको नजर आती है, जो हमको सीखने से रोकती है, वो ये है कि हमारे मन में ये बहुत गहराई से बैठा हुआ है कि मैं जानता हूं, मुझे पता है, मैं जानता हूं और मुझे पता है। ये दो इतनी बड़ी चट्टानें हैं कि जो हमारा सीखना बिल्कुल रोक देती हैं। हाँ, तकनीकी क्षेत्र में इसका कुछ महत्व हो सकता है कि मुझे कोई खास मशीन चलानी है तो मैं कह सकता हूँ कि हाँ मुझे ये मशीन चलानी आती है, या मैं कह सकता हूँ कि मैं कंप्यूटर पे टाइप कर सकता हूँ, लेकिन वो उसी सीमित संदर्भ में है बात। लेकिन जब मैं पूरे जीवन में और पूरी शिक्षा के समग्र रूप में उसको देख रहा हूँ तो बिल्कुल अलग बात है। और वहां ये कह देना कि मैं जानता हूँ, वो एक पत्थर की तरह है जो आपके रास्ते में अटक जाता है, एक लॉक की तरह, जो एक ताले की तरह जो सब कुछ बंद कर देता है और हमारे सीखने की प्रक्रिया रुक जाती है। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज हमको यही दिखाई पड़ती है कि जो शायद सुकरात से लोग कहते चले आ रहे हैं, सुकरात ने शुरू कर से भी शायद पहले से लोग इस बात को समझते आ रहे हैं कि मैं नहीं जानता, यही मेरी सबसे बड़ी पूंजी है, या मेरा सबसे बड़ा ज्ञान यहीं से शुरू होता है कि मैं नहीं जानता, क्योंकि मुझे नहीं पता है तभी मैं सीखूंगा। अब जब मैं अपने बारे में बात कहता हूँ कि अपने बारे में, कि मेरे मन में एक बहुत गहरी सी छवि है कि मैं ये इस तरह का व्यक्ति हूँ, मैं ऐसा ऐसा करता हूँ, और मैं उसी एक ठोस छवि को लेके आगे चलता रहता हूँ। लेकिन जब मैं कहता हूँ कि मैं नहीं जानता, मुझे सीखना पड़ेगा, अपने बारे में भी सीखना पड़ेगा, तो फिर एक बिल्कुल ही अलग दुनिया मेरे सामने खुल जाती है, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है और मैं हर रोज कुछ नया सीख रहा हूँ, हर रोज कुछ नया जान रहा हूँ। तो वहां से फिर मैं अपनी खुद की शिक्षा को शुरू करता हूँ। अब यहाँ से उठकर अब मैं जरा अगर शिक्षा की भी बात करूँ, जो आम अर्थ में शिक्षा का जहाँ तक इस्तेमाल है, तो उसमें भी अगर हम देखें कि जिस शिक्षा को आज हम जानते हैं वो कहाँ से शुरू हुई, तो वो शुरू होती है जब दुनिया में औद्योगिकीकरण शुरू हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ। तो इंडस्ट्री के लिए और उद्योगों के लिए खास तरह के लोगों की जरूरत थी, और उन खास तरह के लोगों को ट्रेन करने के लिए स्कूल खुलने शुरू हुए। और ऐसे स्कूल यूरोपियन कंट्रीज में खुले, यूरोपियन देशों में खुले, इंग्लैंड में खुले, फ्रांस में खुले, और जहाँ औद्योगिक क्रांति हो रही थी, जर्मनी, वहाँ इस तरह के स्कूल खुले। और उन स्कूलों का उद्देश्य सिर्फ उन जो फैक्ट्रीज हैं, जो कारखाने हैं, जो उद्योग हैं, उनमें काम करने के लिए एक खास किस्म के लोगों की फौज को तैयार करना था। यानी उनका उद्देश्य ही इतना सीमित था। बाद में वही उद्देश्य पूरी दुनिया में फैल गया। अब हर जगह शिक्षा का एक ही उद्देश्य था कि खास तरह के कारखानों में, नौकरियों में, व्यवसायों में काम करने के लिए लोगों को तैयार करना। इसका शिक्षा से, मनुष्य के विकास से, मनुष्य के अंदर खिलने से कुछ लेना देना नहीं था। और
सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि एक खास तरह से काम करने के लिए उसको तैयार किया जाए। बाद में फिर और चीजें भी जुड़ती गई, उसमें फिर ये भी जुड़ गया कि जो समाज की धारा है या जो समाज का मूल चरित्र है उसी के अनुरूप, जिसको कृष्णमूर्ति ने अभी इस वीडियो में भी कहा है कि क्या आप सिर्फ उस समाज का जो पैटर्न है, समाज के जो ढर्रे हैं, सिर्फ उसमें फिट हो जाना भर ही आपकी शिक्षा का उद्देश्य है। तो इसमें फिर हमारी राष्ट्रीयता की शिक्षा आ गई, फिर हमारी इसमें तरह तरह की धार्मिक शिक्षाएं शामिल हो गई, फिर नैतिकता के नाम पे एक खास किस्म के पैटर्न की शिक्षा भी हो गई। तो सारा कुछ एक खास किस्म के फ्रेम में मनुष्य को बांधने के लिए हो गया। तो जब कृष्णमूर्ति जैसा कोई व्यक्ति आता है और ये सवाल उठाता है तो उसका जवाब शायद इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मुझे लगता है कि सवाल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सवाल ज्यादा जरूरी है, ज्यादा आवश्यक है, ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हम उसको देखें। और वही सवाल हमको मजबूर करता है कि हम इस सारी शिक्षा की व्यवस्था के ऊपर एक नई दृष्टि उसके ऊपर डालें। धन्यवाद। थैंक यू संजीव। हमारे और मित्र हैं, खास करके सभी लोग शिक्षा से जुड़े हैं, जिस अर्थ कृष्ण जी शिक्षा की बात कर रहे हैं, लेकिन जिनको बिल्कुल ज़मीन पर काम करने का अनुभव है, जो बच्चों से रोज़ मिलते हैं, जो कि हमारी सुख, जो जिसे हम एजुकेशन कहते हैं, उससे वो जूझ रहे हैं उसकी समस्याओं से, वो सभी अपनी बातें शेयर करें और अपनी अनुभवों को बताएं। उन्होंने स्वाभाविक है कृष्णमूर्ति को भी पढ़ा है, कहाँ उन्हें कॉन्फ्लिक्ट्स महसूस होती हैं। अब जैसे कोई टीचर है जिसने कृष्णमूर्ति को पढ़ा और काफ़ी दिलचस्पी है उसकी, और वो एक स्कूल में जाता है, तो शायद उसको एक दूसरी तरह की, पूरी तरह से एक अलग सच्चाई का सामना करता है। ऐसा सब स्कूलों में होता है। अगर वो नॉर्मल स्कूल में जाए या वो कृष्णमूर्ति स्कूल में भी जाए तो उसे ऐसे अनुभव होंगे कि अरे ये तो कुछ और ही बात है जो कि कृष्ण जी ने कही और जो यहाँ हो रही है। आपके साथ वही प्रेशर्स हैं, आपको एग्जामिनेशंस लेने हैं, आपको लेसन प्लान बनाना है, टर्म के लिए, पूरे टर्म के लिए एक प्लान करना है, उसके हिसाब से पढ़ाना है। तो ये चीज़ें जो हैं उसके अंदर बहुत बहुत तरह की कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा करती हैं। तो जो लोग काम करते हैं और इस बड़े लेवल पे, जैसे मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, जैसे डॉक्टर नायक हैं, हम लोग, बहुत अच्छी बात है कि आज हम लोग के साथ वो आए हैं। तो ये सब हम लोग शेयर करें, क्योंकि एजुकेशन अगर आप सोचते हैं कि स्कूल में ही ख़त्म हो जाता है, कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में ख़त्म होता है, तो ये बहुत ही गलत धारणा है। क्योंकि जीवन, जैसा आपने कहा, वो हर समय आपके दरवाजे पे दस्तक देता है, हर दिन कुछ न कुछ पढ़ाता है, हर रिश्ता कुछ पढ़ाता है। तो सीखने के लिए कृष्ण जी ने जो बात की, सीखने वाला मन अगर है तो हर रोज़, अभी इस डायलॉग को ही एक क्लासरूम समझा जा सकता है। जो बातें वो कर रहे हैं, जिस तरह से सुन रहे हैं, हर चीज़ कुछ सिखाती है। तो मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूँ फिलहाल तो कि लोग अपनी बातें शेयर करें। और सर, ये महेश जी का काफी देर से हाथ ऊपर है, वो कुछ प्रश्न पूछना चाह रहे हैं। स्टार्टिंग से वो कुछ कह रहे हैं। कौन? महेश जी, आप प्लीज अपना प्रश्न पूछ लीजिए, फिर सविता जी। महेश जी, उस समय जब कृष्ण जी का वीडियो चल रहा था तब भी उन्होंने अपना क्या आप अपना वीडियो सर ऑन कर सकते हैं? और आपको अनम्यूट करना होगा, आप खुद को अनम्यूट करें। आप अपना वीडियो अगर ऑन कर सकें, अगर चाहें तो। महेश जी। सॉरी। हाँ जी सर, मेरा कोई क्वेश्चन नहीं, मुझे एक्चुअली आइडिया नहीं है, मैंने फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहा हूँ, तो सॉरी सर। कोई बात नहीं, कोई बात सर, चैतन्य जी, संजीव जी, सुशील जी, सबको, बाकी जी सविता यस, तो सबको प्रणाम है। एंड मुझे ये कहना है कि जब मैं सीख रही थी एज अ चाइल्ड, तो मुझे बहुत ही अच्छा सौभाग्य प्राप्त हुआ कि माय फादर वाज अ वेरी बिग एजुकेशनिस्ट। उन्हें बस लर्निंग से मतलब था, न मार्क्स देखते थे न कुछ और।
तो हम सब बच्चे अपने आप ही पढ़ते पढ़ते चले गए। एंड मैंने ये देखा है कि कृष्णमूर्ति स्कूल में और हमारे बाकी स्कूल में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि हमारे बाकी स्कूल में जब हमारा बच्चा हमको अप्रोच करता है, द टीचर इज नॉट साइलेंट। एज सविता रेड्डी एज अ टीचर आई वुड स्टार्ट टॉकिंग, ओके। एंड when I have put my son in a Krishnamurti school, I realized that when my son is questioning, तो उसका क्वेश्चन का आंसर टीचर नहीं देते हुए उससे और क्वेश्चन पूछती है, ताकि वो एक इंक्वायरी की आदत में पड़ जाए, ताकि वो एक जिंदगी में कोई भी प्रॉब्लम आए तो वो इंक्वायरी के थ्रू ही विल बी केपेबल ऑफ सॉल्विंग द ब्लॉक्स ना। So I think the inquiry and this lifelong learning go hand in hand, and we have to keep propagating that. Thank you, sir. Are you part of some Krishnamurti school, ma'am? So my son went to Gautamanna. I was very closely associated to Kabir Anna, and I'm now with Rajghat. My son is in the 12th standard, but my journey with Krishna ji, luckily my children kept putting me back, क्योंकि कई बार है ना जीवन की आपाधापी में वो विच्छेद हो जाता है, हम छूट जाते हैं कई चीजों से। बट जब ये बच्चों ने मुझको वापस जोड़ा, उसके बाद there was no turning back, तो मेरे लिए बहुत ही सही रहा। मुझे एक स्कूल खोलना है जो कि बहुत ही छोटा होगा, छोटा सा, जैसे ऑन अ फार्म, जहाँ खूब सारे खेत हो, खूब हरियाली हो, उनके बच्चों के पसंद के सारे पेड़ होंगे, इमली के, अमरूद के, आम के, let them be there and just maybe 4-5 लोग, हम उन 10-12 बच्चों को बस ये मतलब हम उनसे सीख जाएं और वो नेचर से सीख जाएं कि भाई हम कोएग्जिस्टेंस में कैसे प्यार से रह सकते हैं। So I am part and parcel, but yes, I've never been able to teach. मैंने एडमिशन तो ले लिया था एज अ टीचर विद गौतमन्ना, बट मेरा दुर्भाग्य रहा कि मैं ज्वाइन नहीं कर पाई थी सर। थैंक यू सर। जी थैंक यू, आपका सपना पूरा हो जल्दी, आपको इसी ग्रुप से कई टीचर्स मिल जाएंगे अपने सर टीचर्स तो मैं कर लूंगी। गौतम अन्ना ने मुझे यही बोला कि सविता बाकी सब चीज हो जाएगी, टीचर्स कहाँ से लाओगी। मैंने कहा सर मैं तो अपने पेरेंट्स को टीचर्स में कन्वर्ट करूंगी। हाँ वो भी अच्छा, नहीं तो आप सुशील जैन जी से आप कांटेक्ट में रहिए। जी जी जी, एक्चुअली शुरू में तो सर हमें 2 या 3 लोगों की ही जरूरत होगी, क्योंकि हम बहुत छोटे में शुरू करेंगे। क्योंकि मैंने ये भी देखा है कि कबीर अन्ना को मैंने पूछा कि मैं कहाँ डालूं मेरे बेटे को, तो उन्होंने कहा कि देखिए आप किस लिए चेंज करें स्कूल। मैंने उनको कहा बस यही है कि मुझे एक फुल फ्लेज अच्छा ह्यूमन बीइंग चाहिए बच्चे में, ना कि मुझे कोई वो मतलब नहीं है कि वो क्राइस्ट स्कूल कॉलेज ही पकड़े या कोई, इट्स ओके इफ ही डजंट गो टू अ कवेटेड कॉलेज। तो ही सेड सबसे छोटा स्कूल हमारा है गौतम अन्ना के पास, तो आप वहाँ जाएं, क्योंकि वहाँ सबसे ज्यादा उस बच्चे के विकास पे ध्यान दिया जा सकता है, उसके व्यक्तित्व पे। So I would like to keep the school very small. Yes, sir. I would like to keep the school very, very small. Good. Thank you, sir. Thank you. Thank you. So Deshna ji, may please, should you have a question? मैं थोड़ा हिंदी में ट्राई करती हूँ। No, you can use English. Doesn't matter. Okay, yeah. okay. You can go with English. No problem with English. Okay. Like I am teaching in a school, in high school for the last 20 years. लेकिन for the last 10 years or so I have been reading Krishnamurti. और वो मेरे अंदर एक बहुत डिस्कंटेंट दिन ब दिन पैदा होते जा रही है, क्योंकि जो मैं डेली लाइफ में जो मैं फेस करती हूँ और जो मुझे लगता है ऐसा होना नहीं चाहिए, वो एक कॉन्फ्लिक्ट हर दिन मैं फेस करती हूँ। जैसे 2 चीज़ें मैं बोलना चाहूँगी, 2 things, that is one is use of authority। जैसे मुझे पता है 50 बच्चे हैं, there are 50 children, so in that मतलब मैं क्या करूँ, if I don't use my authority then nobody will listen to me। अगर 5 बच्चे 10 बच्चे होते then मुझे मन करता है कि मैं उनसे बात सुनूं,
लेकिन मुझे एक सिलेबस ख़त्म करनी है, मेरा परफॉर्मेंस देखा जाएगा, अकॉर्डिंग टू दैट मुझे सैलरी मिलेगी, उससे मेरा घर चलेगा। और मेरे अंदर जो हो रहा है कि बच्चों से बात करे, उनका क्या प्रॉब्लम है सुने, बट आई हैव टू फिनिश माय सिलेबस। और एक होता है कि बच्चों कुछ भी गलत काम करते हैं तो डीपर लेयर में nobody tells them, like एक बच्चा चीटिंग करते हुए पकड़ा गया तो उसको एक पनिशमेंट दिया जाएगा, उसको पेरेंट्स को बोला जाएगा, लेकिन टू टेल देम कि क्यों तुमने चीटिंग किया वो देखो, क्या तुम्हारे अंदर कोई डर है कि तुम पास नहीं करोगे तो फादर पीटेगा, ऐसा मारेगा। In fact, last few years I'm giving a lot of stress on relationship कि बच्चे से बात करे, देखे outside the classroom। तो वो some of them have owned up, I cheated because I know if I failed my father will beat me। So ये पेरेंट मतलब स्कूल में बैठ के बच्चे को बिठा के थोड़ा नीचे डीपर लेयर्स में अगर सोचने का हम लोग कभी नहीं करते। पनिशमेंट में भी रिवॉर्ड होता है, फिर सक्सेस में भी रिवॉर्ड होता है, तो ये सब चीज़ें मुझे बहुत परेशान करती है। लेकिन कृष्णमूर्ति स्कूल्स तो 4-5 ही है और लाखों स्कूल नॉन कृष्णमूर्ति है, तो सब लोग कृष्णमूर्ति स्कूल्स में ज्वाइन नहीं कर पाता। मेरा जो लाइफ का वो है, आई कैन नॉट गो टू अ कृष्णमूर्ति स्कूल नाउ। सो ये कॉन्फ्लिक्ट मेरे अंदर चलता रहता है, बट आई ट्राई टू गिव अ लॉट ऑफ स्ट्रेस ऑन द रिलेशनशिप। बच्चे के साथ एक रिलेशनशिप हो तो वो खुद ही आ जाते हैं बात करने के लिए, तो इतना ही कर सकते हैं। फिर जैसे कि मॉरल साइंस क्लासेस होते हैं, बाइबल से बोला जाता है, तो एक मतलब बच्चे को बोला जा रहा है बाइबल में जीसस क्राइस्ट ने ये किया था 2000 साल पहले, तो एक सामने में दिख रहा है कि एक झूठ सिखाया जा रहा है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती। ये कॉन्फ्लिक्ट मेरे अंदर चलता रहता है, यही मैं शेयर करना चाहती हूँ। Sir, can I add a little to Sudeshna ji? Yes. Sudeshna ji, you can't go to the school now. The school will come to you, and together we'll take this kind of schooling to every school on this planet. Right. All right. Let us do that. Let us bring a school to us. Open one in your backyard or join my backyard school. तो हमने वैसे लॉकडाउन में we have created a WhatsApp group of interested teachers, yes, and we meet once a week. We read some portion of Krishnamurti as things related to education, and we talk amongst each other. You know that that's a good way. Yeah. But ये conflict भी मैं देखती रहती हूँ, बस I cannot do much about it. That is your learning opportunity, na? Right. If I had not seen the conflict in a normal school with my kid, I would not have rediscovered my Krishnamurti. तो कृष्णमूर्ति पढ़ने से हलचल मेरे अंदर बढ़ जाती है, मतलब डिस्कंटेंट एक He wanted to do that. लाइफ पहले अच्छी चल रही थी, अब लगता है कि बाप रे कहाँ है हम। ठीक है, that's all. नागर सर, ये वर्मा जी के काफी ख्याल हैं इस बारे में, शिक्षा के बारे में। जरूर तो वर्मा जी ने जेनेटिक्स में पीएचडी की हुई है, तो ये डॉक्टर हैं, और ये दोनों हस्बैंड और वाइफ टीचिंग में ही रहे हैं। तो उन्होंने मुझे कहा था कि उनको जो लेटेस्ट टेक्निक्स हैं उनके बारे में बहुत सारा ज्ञान है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वर्मा जी को अनम्यूट करके उनसे बुलवाया जाए। कैसे किसी से कैसे बुलवाया जाता है? कोशिश करके देख रहा हूँ। एक्चुअली सुशील जी ने जो कहा, बिल्कुल इस समय कोई प्रश्न मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है। जो भी बोला गया वो काफी रेलेवेंट है, और आई एग्री विद ऑल दैट हैज बीन सेड, इंक्लूडिंग व्हाट सुदेशना and her conflicts are, and if there is any solution to that, and Nagar Saab can tell because he was associated with teaching also. Mine was a purely research job, so the only thing I can say is that silence is required to learn. Silence in the ambience, silence here, and a genuine inquiry. So if that is there, then even plants talk to you. जैन साहब, मैं भी कुछ कहना चाहूँगा।
इनको पूरी कर लेने दीजिए, लेट हिम कंप्लीट सर। वाघमारे जी जरा ये कंप्लीट। भक्ति बाद में कर लेंगे। भक्ति जी का बोल रहे थे सर, मेरे को लेक्चर के पहले बात हुई थी इनसे, वर्मा जी से, तो बोल रहे थे कि मुझे नई टेक्निक का बहुत सारा बात करते हैं बच्चे लोग, तो वो बात करते तो मुझे अच्छा लगता है ना, उनकी इच्छा भी थी उसमें। उनको समय दीजिए। Basically, I am against techniques and management. You see, they are talking about the whole and awareness. Awareness and whole, that is the main thing they have talked about. This is the crux. And transcendence to and from as a teacher, and what you are looking at, the communion is important to become one with that. So probably certain things automatically come to you. For that, silence is very, very important. So the silence learning is best in silence. But naturally, schooling is a different ambience, a different challenge, a different atmosphere. So that has to be tackled according to the child you are talking to, or so-called educating, because the teacher is all getting educated, interacting with the child, the teacher simultaneously is getting educated as well. That is the best way. So for this, transcendence is important. And it's not a technique. It's not a technique. It cannot be, you can't learn it. If it is there, it is there. As JK said, if either love is there or not there. Nobody can teach you. So certain things which are essentially the part of your ground state, which is Anand, so they cannot be taught. They are implicit, as you might have read about Plato, that the entire knowledge is implicit in you. It is implicit in you. What teacher does it takes out of you. The potential in each one of us is there. So for that, all these things are important. Silence, then inquiry, genuine inquiry, not borrowed from somewhere. Then things do happen, automatically these happen, and something comes out of you. And this, I have 10, 20 papers come out of me, not that I have done it, but it has come out of me from nowhere, almost. And nobody had worked on those problems, very simple problems related to plant research. So, important part of learning is transcendence, social transcendence, with people, with things. So you have, temporarily you transcend that state, and somehow you learn from that. It's not that it is something permanent. Challenges are not permanent. So everything comes to you, and then silence, if it is silence is there already, if I am fragmented in 10,000 problems and desires and everything, what are the chances of getting? So this is also one corner, something is there. And not known, unknown from unknown. So these are the things, this is my practical experience with that. So I don't believe in techniques, I don't believe in management. I don't manage, I have never managed even plants. I have learned from nature. And my hobby is photography. So that gives me tremendous everything. You see, not only the object I am photographing, but the surroundings are very important. Without surroundings, this object has no value. So likewise, expansion of your consciousness, automatically it expands in you. This is the important part of learning. This helps you in your day-to-day mundane routine activities as well. But since it was everything that was talked about today was related to school and their limitations and the education in the present day, already Ravindra
Tagore started it long back in Shanti Niketan. Aurobindo started in his own way. So a number of educationists, now things are definitely changing. Things are definitely changing. Number of students per class is now restricted. Certain schools are very strict about it, that they should not be more than 15 or 20 people. So likewise, because my younger daughter Bhakti is associated with counseling and teacher counseling and going to different schools, especially those schools where the children they belong to have-nots. They have nothing. How to deal with them? How to educate, so-called educate them. Likewise, the best thing is that Krishna also talked about it, the relationship, and in relationship, transcendence is important, communion is important. Without that, you will never know under what condition this fellow has come today, this day, in what condition, whether in what grasping he has, this child. Because we have not seen our childhood, but this childhood, we see for the first time. We have become teachers. But this is a new atmosphere, children from this atmosphere, and the pressure is tremendous of technology, what people are talking, technology. Everything is digital, and nobody denies it, and we take it for granted that it is very much required. Otherwise, what will they do? So likewise, a very challenging, more so under this COVID situation, things have become still challenging to all of us. So something good it's not that technology is not good. It does. Google is not good. It does. It is good. It is good, provided when do you use it? What for do you use it? Are you doing something else and suddenly something comes to you, and then you get much faster meaning of that and reference and around that, so much of it from Wikipedia and all that. These things are important, but they take you with them. The technology, the instrument takes you. And because a number of applications are there, most of them related to games and entertainments and something seen, not to be seen, and all that. So it is freely available to every person, every boy or girl who has a mobile. So it's a very, very, very complicated situation is there. So how to be silent under these circumstances? And a very different type of silence, you can feel that people are getting neurotic because of this silence. They're forced sitting at home. They don't know the neighbor. They don't know who is next door. They have never been talking to them. Now they are forced to it. So likewise, a different silence, a very entirely different silence is around us, and that's a challenge. So we do learn in this also. We can learn in these things, but it's a question of doing it. What are we doing with it? We talk about plantation and this thing. Are we doing it ourselves? How to do it in flats and this, everything. So a very complicated situation is there. I don't want to take more time because there are so many people must be waiting for questioning. Dinesh, no question that way. Dinesh Wagmare, he wanted to say something, and then Tarun Jain. Thank you very much for giving me the time. Am I audible? हिंदी में बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है. मेरी आवाज सुनाई आ रही है आपको? हिंदी में, हिंदी बेल्ट वाले भी सब अंग्रेजी में बात करेंगे तो बाकी किससे उम्मीद करूंगा मैं? मेरी आवाज सुनाई आ रही है? मेरी आवाज सुनाई आ रही है क्या? बिल्कुल बिल्कुल. मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अभी काम कर रहा हूँ और ये जिस चीजों की बात चल रही थी वो सब अभी फेस भी कर रहा हूँ. मुझे तो ऐसा लगता है कि आज की जो व्हाट इज है उसको ही हमें देखना चाहिए और ये सब चैलेंजेस जो है ये तो रहेंगे और अभी फिलहाल जो स्थिति है उसको हमें कैसे उससे ऊपर उठना है और कैसे उनसे फ्री होना है ये ज्यादा महत्वपूर्ण लगता है मुझे. मुझे ऐसा लगता है कि जो अभी शिक्षा चल रही है उसमें भी कोई
समस्या नहीं है। वो शिक्षा जो है सिर्फ एक, जैसे कि वो कृष्णमूर्ति जी बोल रहे थे, वो एक पार्ट है टोटलिटी का। इसको हमें बच्चे तक कैसे पहुंचाना है ये हमें देखना चाहिए। और ये जो कॉन्फ्लिक्ट है और ये जो चैलेंजेस हैं ये भी पार्ट ऑफ लाइफ है। अब इससे कैसे ऊपर उठे, उसको कैसे होलिस्टिक हम विजन दे सकते हैं, या कैसे उसको हम सेल्फ नॉलेज की ओर बढ़ा सकते हैं, कैसे उसको इंक्वायरी का महत्व उस तक पहुंचा सकते हैं, ये ज़्यादा मुझे लगता है कि महत्वपूर्ण है। अब जैसे ये चैलेंजेस तो उसके सामने लाइफ में रहने वाले हैं, अब उसको वो कैसे फेस करे, उसको वो कैसे अटेंड करे। अभी तक वो फेस कर रहा है, उसको अटेंड कैसे करना है ये सिखाना ज़्यादा मेरे ख्याल से मुझे लगता है महत्वपूर्ण है। और अभी उसकी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रही है, वो तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन इसके अलावा जो साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट है वो उसका महत्व उसको उस तक कैसे पहुंचाया जाए, और उसको कैसे ये बताया जाए कि वो सेल्फ नॉलेज में जाएगा, उसके इमोशंस और उसको देखना सीखेगा, उसके फीलिंग्स को समझेगा, और उसके अंदर की जो पर्सनैलिटी है, जो मूल जो चीज़ है, उसको कैसे उसका फ्लोरिंग हो सके। इसको अगर इस बात को अगर उस तक पहुंचाया जाए तो मेरे ख्याल से इसमें चेंज आ सकता है। बाकी जहाँ तक इन्होंने बताया कि हम काफ़ी बच्चे रहते हैं और इस टाइप की समस्या आती है, तो ये हर ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है, हमारे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी हम देखते हैं। तो हम ये कोशिश करते हैं कि उसके अंदर का जो बेस्ट है जो भी है उसको कैसे हम बाहर ला सकते हैं, और उसको हर व्यक्ति के अंदर कुछ प्लस पॉइंट्स और माइनस पॉइंट्स होते हैं, तो कैसे उसका शॉर्ट एनालिसिस करें, कैसे उसको आगे बढ़ाएं, और उसके स्ट्रेंथ और वीकनेस और अपॉर्चुनिटी और थ्रेट, इसको सबको मद्देनजर रखते हो कैसे उसको एजुकेट करें। तो ये हम लोग जैसे देखते हैं, तो मेरे ख्याल से स्कूल में भी यही होना चाहिए। और कृष्णमूर्ति जी ने जो कहा है कि सेल्फ नॉलेज, उस तक कैसे हम ये इसका महत्व पहुंचा सके, ये महत्वपूर्ण है, ऐसा मुझे लगता है। जी थैंक यू। श्रीदेवी जी ने भी हाथ उठाया, वो कुछ कहना चाहती हैं। एक चीज़ मैं ये कहना चाहता हूँ कि कृष्ण जी ने टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर्स के बारे में जब बात की तो उन्होंने एक अच्छा सवाल रखा था सामने। उन्होंने कहा था कि जब आपके पास ज़्यादा फुर्सत होगी, जब आपके काम मशीनें करती हैं, कंप्यूटर्स करते हैं। उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया था कि एक मंकी ने भी बहुत अच्छी पेंटिंग बनाई थी, और कंप्यूटर कविताएं भी लिख सकता है, लिखेगा। तो फिर जब आपके पास फुर्सत होगी तो उस फुर्सत का आप क्या करेंगे। मैं बस एक सवाल रखना चाहता हूँ, ये अलग ही एक इश्यू है। जब हमारे पास ज़्यादा स्पेस होगी, ज़्यादा वक्त होगा, तो हम उस वक्त का क्या करेंगे अगर हम उन चीज़ों की तरफ दिलचस्पी नहीं दिखाते हैं जो कि वास्तव में मशीनें कर ही नहीं सकती। एक सवाल है। श्रीदेवी जी हाथ उठा रही हैं, वो एजुकेशन से जुड़ी हैं, उनकी बात सुनते हैं हम लोग, उनके कुछ सवाल होंगे शायद। हाँ, शुक्रिया चैतन्य जी। मैं दरअसल सवाल सोचना चाहिए हम लोगों को थोड़ा। हम जिसको नॉलेज बोल रहे हैं वो बेसिकली इंफॉर्मेशन है, वो नॉलेज नहीं है ना। नॉलेज के ऊपर हमें किस तरह से काम करना चाहिए शायद ये मालूम भी नहीं है एक तरीके से, थोड़ा सा। क्योंकि जितना पेशेंस नॉलेज को होने के लिए, या एक ह्यूमन बीइंग के अंदर एक नॉलेज बनने के लिए, मतलब दोनों, मतलब एक दूसरे व्यक्ति के अंदर के नॉलेज को पहचानना भी एक बहुत बड़ी बात होती है। एज ए टीचर मैं बात कर रही हूँ, तो मेरे पास बच्चे हैं, तो जिस धैर्य की ज़रूरत है वो धैर्य हमारे अंदर अभी शायद थोड़ा, हम उसी के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं जो कृष्णमूर्ति के थ्रू बोला, उस धीरज के लिए ही संघर्ष कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि ना पेरेंट्स में वो धीरज नहीं है, जिसके कारण स्कूल्स भी बहुत हरी करते हैं। देखिए ना, आप पढ़ने का जो उम्र है, जब आप और हम छोटे थे तो वो एक 7 साल का उम्र होता था। आज आप अर्ली चाइल्डहुड के नाम से 3 साल से ही शुरू कर दिए हैं इसको। और मतलब वो कितनी जल्दी उसको एक बच्चे को सोसाइटी के लायक बना देना या इंस्टीट्यूशनलाइज करना है। आज हम एजुकेशन के माध्यम से बिल्कुल भी हम एक ह्यूमन बीइंग को एक्सप्लोर नहीं कर रहे हैं। हम लोग हमारी सोसाइटी को जिस तरह के लोगों की ज़रूरत है वो डेवलप कर रहे हैं।
और दूसरा इवन अगर टीचर्स थोड़ा सा सोच भी पाते हैं तो आपका सिस्टम उसको सोचने नहीं देता है उनको उस तरह से। उनके अपनी एक्सपेक्टेशंस है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले संजीव सर कह रहे थे कि हमें मतलब इस तरह के लोग चाहिए, तो उसी तरह के चीज़ें बनती है। तो आज इंडिया में भी अभी स्टेट जिस तरह के लोगों को चाहता है कि उसे किस तरह के लोग चाहिए, उसी तरीके का एजुकेशन सिस्टम पूरा बिल्ड करता है। आपके टेक्स्ट बुक्स देखिए, सारी चीज़ें उसको रिफ्लेक्ट करती हैं स्टेट के थॉट को। तो थोड़ा एजुकेशन के मामले में हमें शायद थोड़ा जो अगर आप लोगों ने पढ़ा हो, एक किताब होगा शायद सबने सुना होगा नाम, तो चांद करके एक किताब है। अगर हम थोड़ा सा उसको पढ़ें तो थोड़ा हमें और करीबी से बच्चों को समझने का मौका मिलेगा। मतलब वो बच्चे को समझने का मौका इसलिए मिलेगा क्योंकि उनके स्कूल के प्रिंसिपल ने उस बच्चे को वो मौका दिया। तो एक बड़े व्यक्ति, एक एडल्ट का एक बच्चे के साथ एंगेज होना बेसिकली थोड़ा सा चैलेंजिंग है, क्योंकि एडल्ट का अपना नॉलेज है और बच्चे का अपना एक्सप्लोरेशन है। आपका नॉलेज बेसिकली उसके एक्सप्लोरेशन को अड़ंगा लगाता है, मतलब रोकता है बोलिए तो, कि मतलब नहीं तुम ऐसे मत करो, तुम ऐसे मत करो, तुम वो मत। ज्यादातर ना कहना ही हम लोग सिखाते हैं बच्चे को कि हाँ कितनी बातों के लिए कहते हैं और कितनी बातों के लिए ना कहते हैं। थोड़ा अगर हम भी सोचे तो हमको समझ में आ जाएगा, शायद 100 में से 92% हम लोग ना ही कहते हैं, मुश्किल से 7-8% जो हमारे मन का होता है उसी के लिए हाँ बोलते हैं। तो एजुकेशन में हमें ये छोटी छोटी चीज़ों को जब हम लोग थोड़ा फोकस होते हैं तो सोचने के लिए टाइम मिलता है। और इसमें मतलब बहुत हड़बड़ी है हम लोगों को, ये हड़बड़ी ही ये सारी मुसीबतों को मतलब जनती है बोलिए तो, मुझे ये लगता है, जिसमें कि जो पेशेंस चाहिए वो पेशेंस नहीं है। और आपका जो ट्रेनिंग टीचर्स को डेवलप करने का जो तरीका है वो भी बहुत ही खतरनाक तरह का तरीका है। बिल्कुल फैक्ट्री सिस्टम से टीचर्स को हम लोग डेवलप करते हैं, है ना। तो हालांकि ये सारी चीज़ें चैलेंजेस भी हैं, लेकिन जो लोग नेचुरली टीचर्स होते हैं, मतलब पेरेंट्स के पास भी लर्निंग का और ह्यूमन मतलब मैं क्या बोलूँ, जैसे हम तो एक्सीडेंटल पेरेंट्स हैं कि हाँ हमारी शादी हो गई इसलिए हमारे बच्चे हो गए, बाकी लेकिन हमारा कोई ऐसा डेवलपमेंट नहीं है, ना सोशल डेवलपमेंट है ना आपका एकेडमिक डेवलपमेंट है कि एज ए पेरेंट आप अपने बच्चे के साथ कैसे ट्रीट करोगे, कैसे टीच करोगे उसको। तो ये कुछ चैलेंजेस है जिनके ऊपर हम सबको सोचना चाहिए। मेरे पास भी इसका कोई रिस्पॉन्स नहीं है, कोई जवाब नहीं है। इनके साथ में मैं खुद भी जूझती हूँ, जिन टीचर्स के साथ मैं काम करती हूँ उनके अपने क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ज़्यादा प्राइवेट स्कूल तो फिर भी टीचर्स बोल सकते हैं कि प्राइवेट स्कूल्स बोल सकते हैं कि हम ये नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे। जैसे अभी प्राइवेट स्कूल के टीचर्स के पास कोविड की ड्यूटी नहीं है, डोर टू डोर सर्वे नहीं है, लेकिन ये काम गवर्नमेंट टीचर्स के पास है, जिसके कारण कई गवर्नमेंट टीचर्स कोविड पॉजिटिव हो रहे हैं और उनकी डेथ्स हो रही है ना। तो ये जो गवर्नमेंट टीचर्स के अपने तरह के चैलेंजेस हैं, पूरे सिस्टम को कहीं ना कहीं कैरी कर रहे हैं। तो ऐसा लगता है जैसे गवर्नमेंट को लगता है कि सबसे सरल काम है बच्चों को पढ़ाना, और कोई काम मतलब इतना सरल नहीं है, तो इसीलिए टीचर्स को सारे काम में एंगेज कर दो। तो ये मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं अगर सिस्टम में अगर देखेंगे हम लोग चैलेंजेस के लेवल पर। और टीचर ट्रेनिंग तो खैर माशाअल्लाह है ही। मैं यही 2-3 बातें शामिल करना चाहती थी। जी मैं कुछ कहना चाहता हूँ। एक विनीत दुबे जी कुछ कहना चाहते हैं, फिर प्रकाश जी कहेंगे, फिर आखिर में हमारे पास समय अब कम है, संजीव जी कुछ कहें, उसके बाद इसको समाप्त करेंगे। एक मज़ेदार बात मुझे याद आ रही, कोई कहता था कि जब मेरे पास कोई बच्चे नहीं थे तो मेरे पास बच्चों की परवरिश को लेकर 5 थियरीज थी, और अब मेरे पास 5 थियरीज, 5 बच्चे हैं और एक भी थियरी नहीं। विनीत, उसके बाद प्रकाश जी और फिर संजीव जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि समअप करें और इसे खत्म करें। बोले विनीत जी। जी जी जी।
पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं कॉलेज एजुकेशन के साथ 10 वर्षों तक जुड़ा रहा हूँ और 1 वर्ष पहले तक मैं शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहा था। तो मैं अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स जो रहते हैं, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, उनके साथ में काम करने का थोड़ा अनुभव मुझे रहा है। इस आधार पर मैं कहना चाहता हूँ कि कुछ बातें जो उठाई गई हैं चर्चा के दौरान, उनमें से 2 चीज़ें मैं समझता हूँ कि एजुकेशन को हमें 2 हिस्सों में विभक्त करना चाहिए। एक तो अकादमिक शिक्षा जो है वो, और दूसरी जीवन से संबंधित शिक्षा जो होनी चाहिए वो। तो हमारे सारे स्कूल्स और कॉलेजेस जो हैं, दे आर solely focused on the academic education. They are not related at all to the education which is required for living a life in wholesome. तो क्योंकि मैं साइकोलॉजी के साथ में, स्पिरिचुअलिटी के साथ में काफ़ी समय से जुड़ा रहा हूँ और कुछ चीज़ें सोच पाता हूँ, तो मैंने जिस दौरान बच्चों को पढ़ाया है, उस दौरान मैंने एक सुदेशना जी ने कुछ एक पॉइंट आउट किया था कि जब हम अकाडमिक्स के ऊपर ध्यान देंगे, हमें सिलेबस कंप्लीट करना है, तो हम कैसे उनको दूसरी चीज़ों की ओर जोड़ सकते हैं। तो मेरा जो अनुभव मैंने रहा है, मैं क्या करता था कि मेरा जो पूरा समय रहता था उसको मैं उसमें से 20% टाइम एटलीस्ट मैं उसमें दिया करता था कि बच्चों को किस तरह से जीवन जीने की शिक्षा दी जाए। मैं अपना पूरा सिलेबस भी कंप्लीट करता था और साथ में ये भी ध्यान रखता था कि जो चीज़ें उनको कहीं और से मिल नहीं सकती हैं, क्योंकि जब आप देखेंगे जब बच्चे कॉलेज लेवल तक भी आ जाते हैं तो उनको ये ज्ञान नहीं रहता है, एक सही मार्ग निर्देशक का उनके पास अभाव रहता है कि यदि उनके पास जीवन से रिलेटेड कोई समस्याएं हैं तो वो किसके पास जाए। माँ बाप सुनते नहीं है, कोई शिक्षक, अधिकांश शिक्षक जो रहते हैं, दे आर जस्ट रिलेटेड टू द अकेडमिक्स। तो मैंने जो एक्स्ट्रा समय 20% जो आपको बताया है, उसमें मैं उनको नेचर की शिक्षा, रिलेशनशिप्स की शिक्षा, ह्यूमन वैल्यूज की शिक्षा और पेशेंस, एक वर्ड पॉइंट आउट किया गया है जिसको मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ कि शिक्षा में यदि आपको रहना है तो दैट पेशेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहता हूँ कि अपने ईगो को साइड में रखना बहुत ज़रूरी होता है। मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जब हम खासतौर से कॉलेज गोइंग स्टूडेंट के साथ में डील करते हैं तो कई बार उनके प्रश्नों के उत्तर आपके पास नहीं होते हैं, तो आपको ये एक्नॉलेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाँ, मेरे पास इसका उत्तर नहीं है। लेकिन उसका भी एक तरीका ये होता है कि लेट अस फाइंड आउट टुगेदर, ताकि बच्चों को आपके ऊपर विश्वास आए कि हाँ, दिस इज द पर्सन हु इज एबल टू लिसन टू मी एंड he can actually acknowledge the feeling which I am having. तो नेचर के साथ में समय स्पेंड करना, इसकी शिक्षा देना उनके लिए बहुत ज़रूरी है। आप अपने सारे रिलेशंस के साथ में, भले ही वो आपके दादा दादी के साथ का संबंध हो, आपके माता पिता का संबंध हो, आपके पियून के साथ में आपका संबंध हो, उनमें आप कैसे ह्यूमन वैल्यूज को एक आदर प्रदान कर सकते हैं। और इसके अलावा क्वेश्चनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप पढ़ाते हैं तो अधिकांश जो शिक्षक I just want to point out something, Vineet ji. Please be brief, because we don't have much time and we have one more participant who wants to share something. So just be brief and end what you're saying with a question, if you have any. Okay. Because we don't have much time. We only have less than 5 minutes now. Okay, so, I do not have any question. I was just discussing the part from my experience. Thanks a lot for your input. Okay. And because Prakash is waiting, he has to speak, and then Sanjeev ji has to summarize. Yes. Okay, go ahead, please. Yeah. Thank you. ये होस्ट के साथ ये दिक्कत है कि जूम जो है उसमें हैंड रेस के ऑप्शन ही नहीं देता है, तो ये था, इसलिए मैं जो है वो हाथ ही नहीं खड़ा कर पा रहा था। मैं ये एक बुनियादी में संक्षिप्त में ये करता हूँ। अगर 15 मिनट अपने लेट चालू हुई थी, अपन 5-10 मिनट इसको बढ़ा सकते हैं तो बढ़ा देंगे, अगर सबको दिक्कत नहीं होगी।
तो मेरा ये था कि बुनियादी सवाल एक सुदेशना जी ने उठाया था कि कृष्णमूर्ति की टीचिंग्स को उन्होंने पढ़ा और उसके बाद में जो है जब लाइफ को वो फेस कर रही है तो उसमें कहीं इम्प्लीमेंटेशन में बहुत दिक्कत है और उसके द्वारा जो है अंदर कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न होता है। ये एक चीज जैसे उन्होंने बताई, वैसे ही नेशनलिटी के साथ आती है, वैसे ही कास्टिज्म के साथ आती है, वैसे ही कृष्णमूर्ति की टीचिंग्स के और भी बहुत से, जैसे आप सेल्फलेस होने की बात करते हैं और जो आपको डील करना रहता है वो पूरे इगोइस्टिक लोगों से आपको डील करना रहता है। आप इधर जो है नेशनलिटी से फ्री होने की बात करते हैं और पूरा माहौल जो है वो नेशनलिटी के जो है पक्ष में खड़ा दिखता है आपको। तो वो जो है आपके अंदर इतना कन्फ्लिक्ट और इतना जो शोर जो वो होता है कि बाहर आपको अलग दिखता है और भीतर जो है आपका अंदर जो एक आइडियोलॉजी बीच में चली थी कि जब ये आईटी सेक्टर आया था तो नेशनलिटीज की बाउंड्रीज सब जो है टूट रही थी। लोग जो है फ्रीली एक कंट्रीज से दूसरी कंट्रीज में जा रहे थे, पर पिछले कुछ सालों में जो है वापस नेशनलिटी की भावना जो है सब जगह मतलब आने लगी। ऐसे ही कास्टिज्म का है, जब कास्टिज्म को आप कहेंगे कि नहीं यार इसकी कोई वैल्यू नहीं है, आपको दिख रहा है कि कास्टिज्म को क्या करना है, पर जब आप डील करने जाएंगे तो एक जो है उच्च कोटि का या जो है उसके साथ में अलग बिहेवियर होगा और एक जो दूसरा है उसके साथ में अलग बिहेवियर होगा। इवन जो है पुलिस भी उसके साथ में जो है दूसरी तरीके से बिहेव करेगी। तो ये जो कन्फ्लिक्ट है ये जीवन के, आप जब भी ओशो को पढ़ते हैं या जो कृष्णमूर्ति को पढ़ते हैं तो ऐसी बहुत सारी चीजें जो आती है, एक आदर्शता जो है अपने दिमाग में आती है और वो आदर्शता जो है आपको समाज में कहीं नहीं दिखती। तो वो जो है अंदर जो है वो सतत जो है कन्फ्लिक्ट चलता रहता है। तो मैं चाहूंगा संजीव जी से, आपसे, कि इस प्रश्न को एड्रेस करें, अगर आज नहीं हो तो नेक्स्ट वीक जो है इस प्रश्न को लें। और दूसरी चीज जो एक और मेरा प्रश्न था कि मैंने ऐसा लाइफ में देखा जैसे कृष्णमूर्ति को पढ़ने वाले और ये जैसे कहते हैं कि नहीं बच्चे का जिसमें इंटरेस्ट हो उसमें उसको डालना चाहिए, वैसा उसको फ्री करना चाहिए। तो मेरे एक मित्र ने जो है पूरी तरह जो है उसके बच्चे को जो है वो पियानो और ये वो बजाने में इंटरेस्ट था, उसका जो है उसने पूरा उसको जो है लाइफ जो है उसमें दे दी कि चलो ठीक है तू ऐसा कर। पर आज उस बच्चे की जब आजीविका की जो बात आ रही है, उसको सर्वाइवल की बात आ रही है, तो वो नहीं सर्वाइव कर पा रहा है। जो समाज में जो उसको जितनी अर्निंग चाहिए उसको जिंदा रहने के लिए वो नहीं कर पा रहा है। तो ऐसा नहीं है, ये इसमें दोनों चीजें, अगर एक तरफा अपन चलते हैं तो वो जो है बहुत जो है एक अमानवीयता का जो है व्यवहार मतलब हो जाएगा और वो जो है वो भी एक गलत होगा, मेरे को ऐसा लगता है। तो वो जो है इसमें मतलब एक कहीं बैलेंस होना चाहिए कि ये भी होना चाहिए। एक कृष्णमूर्ति की टॉक मेरे को ध्यान आती है 84 की थी या 85 की, जब ऋषि वैली में प्लीज प्रकाश जी कंक्लूड करें, प्लीज प्रकाश जी कंक्लूड करें। हाँ, प्लीज प्रकाश जी कंक्लूड कर रहा हूँ मैं, कर रहा हूँ। हाँ, तो उसमें एक कृष्ण जी कह रहे थे कि नहीं आपको जो पेंटिंग करना हो तो पेंटिंग करो, आपको जो है और किसी में संगीत में रुचि हो तो वो काम करो। तो एक बच्चे ने बहुत मासूमियत से ये कहा कि हम सब अर्निंग जो है अपनी कर लें और उसके साथ में फिर पेंटिंग भी कर सकते हैं। तो कृष्णमूर्ति ने उसका डायरेक्ट जवाब नहीं दिया, पर वो टीचर्स की तरफ इशारा करके और बोला कि आपने जो है बहुत अच्छी शिक्षा दे रहे हो यहाँ पे, मतलब इस टाइप का कमेंट्स किया था। तो मैं ये इस बात को भी मैं जो है चाहता हूँ कि आप कुछ जवाब दें। थैंक यू संजीव। सर आप पर डिपेंड करता है कितना जवाब देते हैं, क्योंकि टाइम तो ओवर हो चुका है। संजीव जी बोलिए, संजीव जी बोलिए। मेरे ख्याल से जैन साहब टाइम बढ़ाना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण बात बोली है इन्होंने। महेश्वर जी बोलिए तो सर, संजीव जी आप बोलिए। सभी कौन सी चीज बातों पर डिस्कस होती है मेरे को पता नहीं है। अपन 7:30 बजे तक का बोलते हैं, अगर उनकी इच्छा हो तो वो रुकना चाहे तो 8 बजे। संजीव जी बोलिए। जी नहीं, ये बड़ा दिलचस्प और बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। इसमें जब हम समग्र शिक्षा की या होलिस्टिक एजुकेशन की या रियल एजुकेशन की बात करते हैं तो उसका सीधा सा और सरल सा मतलब ये होता है कि यहाँ जिस जगह पे हम रहते हैं या जिस जगह पे उस बच्चे को रहना है, उस जगह पे रहने के लिए उसको पूरी तरह से तैयार करना, उस जगह पे रहने के लिए उसको हर
किस्म से हर उसके भीतर बाहर हर तरह से उसकी पूरी तैयारी कराना। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम उसको कुछ उसका कोई एक हिस्सा उसका कमजोर कर देंगे या उसका एक हिस्सा ताकतवर कर देंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो वास्तव में तो शिक्षा का मतलब ही यही है कि हम अपने बच्चे को यहाँ पे रहने के लिए तैयार कर रहे हैं। तो जब हम उसको रहने के लिए तैयार कर रहे हैं तो उसमें एक बहुत ही जरूरी चीज हम उसको ये भी सिखा रहे हैं जिसको हम कहते हैं इंडिपेंडेंस, आत्मनिर्भरता, कि अगर आपको इस दुनिया में रहना है और आपको यहाँ पर सरवाइव करना है तो ये बहुत ही जरूरी है कि आपको अपना उपार्जन करना ही पड़ेगा। आप किसी पे निर्भर होकर नहीं रह सकते। और ये सिर्फ एक तात्कालिक रूप से कुछ समय तक आपको हम ये सहयोग दे सकते हैं और उसके बाद आपको डिफाइन करना है। अब इसमें एक मजेदार चीज, मैं अपना अनुभव आपको बताता हूं कि जिन बच्चों को काम करना सिखाया गया, जिन बच्चों को शारीरिक श्रम सिखाया गया, जिन बच्चों को उनकी मर्जी की चीज करना सिखाया गया, मेरी जानकारी में अनेक बच्चे उसमें से ऐसे हैं जो बहुत ही अच्छा जीवन जी रहे हैं। अनेक बच्चे उसमें ऐसे हैं कि जो बहुत ही शानदार जीवन जी रहे हैं। मैं आपको एक बिल्कुल उदाहरण देता हूं कि चंडीगढ़ में एक स्कूल है जिसका नाम है कोवेदा, और उस स्कूल को कुछ पेरेंट्स चलाते हैं और उनकी एक संस्थापक हैं। उन्होंने अपनी बेटी को जो है किसी भी एग्जाम में नहीं बिठाया, और उन्होंने जब उनकी बेटी एक खास आयु की हुई तो उन्होंने अपनी बेटी से कहा कि देखो, हमने तुमको एक अलग ही तरह की शिक्षा दी है और इस अलग तरह की शिक्षा के कुछ अलग तरह की चुनौतियां भी होंगी जो तुमको सामना करनी पड़ेंगी। तो अगर तुम ये चाहते हो कि वैसे ही चलो जैसे और दुनिया चल रही है तो तुम अब एग्जाम दे दो और हम तुमको इसमें सहयोग करेंगे। तो उनकी बेटी ने 10वीं का या शायद 12वीं का कोई एग्जाम दिया और उसको बड़े अच्छे अंकों से पास भी कर लिया। और उसके बाद उन्होंने कहा आगे आप तुमको क्या करना है? बोली बस मैंने ये चेक कर रही थी अपने को और ये मैंने एग्जाम दे दिया, बात खत्म। मुझे ना कोई एग्जाम देना, ना किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करनी, ना मुझे दुनिया के ढर्रे से जीना, मुझे तो जो काम पसंद है वो करना। और उसको, वो बेसिकली आर्टिस्ट थी और उसको बहुत अच्छा लगता था पेंटिंग करना भी, और उसने ग्राफिक्स का अध्ययन किया और इस समय वो भारत से बाहर काम कर रही है और कई बड़े बड़े कंसर्न्स के लिए काम कर रही है और बड़ी प्रसन्नता से कर रही है। तो जब हम कहते हैं कि हमने उसको अपने मन का करने दिया और उसकी वजह से उसको कुछ झेलना पड़ा, तो इसका मतलब हमने उसको समग्र शिक्षा नहीं दी। वहां भी हमने उसको एक चीज, एक तो आत्मनिर्भरता नहीं सिखाई, अपनी चीजों को खुद करना नहीं सिखाया। जैसे हमेशा हमारी बात होती है तो मैं कहता हूं कि किसी भी 10 से 12 वर्ष के बच्चे के लिए या 15 वर्ष के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है उसके लिए अपना खाना बनाना, कि वो अपना खाना बना सके। हमारे यहाँ इतना बच्चों को निर्भर रखते हैं माता पिता अपने ऊपर कि जब वास्तव में उनको दुनिया का सामना करना पड़ता है तो उनको ऐसा महसूस होता है जैसे वो विकलांग हैं, क्योंकि डिपेंडेंस की इतनी भारी आदत उनको पड़ी हुई है। हर तरह की डिपेंडेंस, फाइनेंशियल डिपेंडेंस, फिजिकल डिपेंडेंस, साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस, इमोशनल डिपेंडेंस, तो उनको आत्मनिर्भरता सिखाई नहीं गई। इस वजह से उनको समस्या आ रही है। समस्या ये नहीं है कि उनको किसी उनकी मर्जी का काम करने दिया गया। पियानो बजा के भी लोग बड़े शानदार जीवन बिताते हैं, लेकिन उसके साथ आपको उनको आत्मनिर्भरता का पाठ पढ़ाना पड़ेगा, उनको जीने का पाठ पढ़ाना पड़ेगा और उनको दुनिया की चैलेंज को, दुनिया की चुनौतियों को सीधा सीधा सामना करना देना पड़ेगा। ना कि ये कि उन चुनौतियों के रास्ते में आप आ गए और उन चुनौतियों को तो आपने झेल दिया और आपके बच्चे को आपने एक कॉटन के ऊपर रख के पाल लिया और फिर एकदम से उसको दुनिया का सामना करना पड़ा, जो बड़ी अजीब ही चीज थी उसके लिए। तो ये मुझे लगता है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है तो मैं चाहूंगा इसको आगे भी इसको जारी रखा जाए। फिलहाल के लिए इतना बहुत है। आज 40 हो गए, अब इसको समाप्ति की घोषणा करनी पड़ेगी। एक बहुत अच्छी प्रेयर है, सिरेनिटी प्रेयर, और जो कृष्णा जी ने उठाया सवाल कॉन्फ्लिक्ट का, कि एक ऐसा टीचर कृष्णमूर्ति भी पढ़ता है और फिर वो जो मेन स्ट्रीम के स्कूल में जाता है, तो एक प्रैक्टिकल उसमें एक जवाब है कि वो प्रेयर कहती है कि गिव मी द करेज टू चेंज व्हाट आई कैन, द स्ट्रेंथ टू एंड्योर व्हाट आई कैन नॉट, एंड द विजडम टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द टू। बिल्कुल, और इसमें मैं एक लाइन और जोड़ दूंगा कि ये जो बेचैनी, ये जो डिसकंटेंट है, ये बड़ी कीमती चीज है। हाँ, इसको संभाल के रखा जाए, संभाल कर रखा जाए। शर्मा जी, आज आपने वाकई में बहुत अच्छी बात बोली है, इसको आगे बढ़ाया जाए, ऐसा मुझे लगता है। जी जी, चैन से बढ़ाएंगे कि बेचैनी से बढ़ाओगे? आज समाप्त कर लो,
अगले मीटिंग में बढ़ा लेना इसको। तो चेन में बांधना कुछ नहीं है, ये भी बेचैन हो जाएंगे। अपन ने 7:30 बजे तक का एंगेजमेंट किया था। अपनी मर्जी है, अपन कितनी भी देर तक बैठो, पर गेस्ट को जब अपन बुलाते हैं तो उसको अपने को 7:30 बजे फ्री करने की अपनी ड्यूटी है, ऐसा मैं मानता हूँ, है ना। तो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट थर्सडे का कोई सब्जेक्ट डिसाइड कर रहे हो तो बता देना, है ना। 8:40 हो गए। थैंक यू। 7:40 नहीं हुआ, 7:40। 1 घंटा और मत चला देना वर्मा जी। तुम हिंदी में नहीं बोलते हो, अंग्रेजी में बोलते हो, हिंदी बेल्ट वाले सब, तो कैसे हिंदी में डायलॉग भी कर पाएंगे मुझे। वैसे बेल्ट शब्द इंग्लिश